Hello, dear students. How are you? Are you fine? Once again, you all are most welcome on your own YouTube channel, CBSE Classes by Goswami Surchandra. Students, we are going to study today a very nice poem, Wind. The poem has been composed by Subramanya Bharati, as the name of the poet has been given already at the bottom of the poem. Subramanya Bharati. Basically, he used to write the poems in Tamil, and this poem was also composed in Tamil, and it has been translated into English by A.K. Ramanujan. The name has been given already. Let us see about Subramanya Bharati. Lifespan 1882 to 1921. Is a great Tamil poet. As I have told you that he was a Tamil poet, famous for his patriotism. Patriotism means देशभक्ति के लिए, and in the pre-independence era. Pre-independence era means before independence, before our freedom. आज़ादी के पहले के वो एक पैट्रियोटिक पोएट थे. मतलब पैट्रियोटिक पोएट मीन्स देशभक्त पोएट थे. यहाँ मैं पैट्रियोटिज्म का मतलब लिख देता हूँ यहाँ, या हिंदी में देशभक्त. तो ये एक देशभक्त पोएट थे और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब स्वतंत्रता के पहले के थे. उसके बाद है A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. A.K. Ramanujan, as I have told you that he is a Kannada poet, and he has translated the very poem into English what we are going to study. Now students, let us know about the poem Wind. The theme of the poem is, you should know at first the theme or the central idea of the poem, that you should be strong in your life. You should be firm in your decision. You should be strong in your decision, physically, mentally. These all things should be strong if you want to have your existence in this world. If you want to be a proper one in this world, if you wish that no one would make any harm against you or no one would harm you, for that you have to keep yourself or make yourself strong. This is the theme of the poem, that be stronger or be strong. So this is the theme, students. Let me write theme है be strong, मतलब आप मजबूत बने. ये इस लेसन का थीम है. उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि इसका टोन क्या है. तो थ्रू आउट द पोएम द टोन इज ह्यूमरस. ह्यूमरस है मतलब विनोदी है. विनोदी का मतलब ये है कि हर जगह एक मतलब हंसी दिलाता, एक आनंदमय वो सिचुएशन क्रिएट करता है. विनोदी कह सकते हैं, ह्यूमरस ROUS. ये ह्यूमरस इसका टोन है. अब हम लोग इसको पढ़ते हैं. जहाँ वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट होगा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन. The wind blows strongly and causes a lot of distraction. How can we make friends with it? कहता है कि हवा तेज बहती है तो बहुत सारी तबाही लाती है. How can we make friends with it? हम लोग इसे मित्र कैसे बना सकते हैं और इसके मित्र कैसे हो सकते हैं. Let us see. आगे दिखता है wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever and poking fun at winglings.
weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. Let us see till here. In this first paragraph or first stanza of the poem, the poet says or the poet requests the wind to come softly or to blow softly. मतलब फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है हवा को रिक्वेस्ट करता है कि तुम सॉफ्टली बहो, धीरे से बहो, और रिक्वेस्ट करता है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। शटर्स का मतलब यू अंडरस्टैंड ना, पैन कह सकते हैं, खिड़कियों को बंद करने का जो वो पल्ला कहते हैं हिंदी में ना, तो विंडो पैन को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखेरो, पेपर हवा जब चलती है तो पेपर्स को बिखेर देता है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, एंड द बुक्स विच आर इन द शेल्फ यू डोंट थ्रो देम। देन लेट अस सी नेक्स्ट, देन लुक व्हाट यू डिड। अब कहता है अब देखो तुमने क्या किया। मीन्स द पोएट हैज़ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द विंड बट द विंड हैज़ नॉट ओबेड हिम, एंड what has the wind done, तो इसने क्या किया देखिए, यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर वर्षा को लाया। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ पोकिंग फन का मतलब मेकिंग फन, यहाँ पोकिंग फन जो दिया हुआ इसका मतलब होगा मेकिंग फन। मेकिंग फन मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ कहता है, और वीकलिंग भी है। वीकलिंग का मतलब होता है वीक पीपल, या वीक कह सकते हैं आप, कमज़ोर लोगों के लिए है वीक पीपल। नाउ सी गिवन हियर, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो। सी स्टूडेंट्स, दिस symbolizes in this word even when someone is weak, the people of the world or other facts in the world, they also make fun of that person. So we should never be weaker, we should try to make ourselves strong mentally, physically. We should be mentally sound, physically strong, so that the world should not make our fun. The same is given here. You are very clever, तुम बहुत चतुर हो। At making fun at weaklings, तुम कमज़ोरों की मजाक उड़ाते हो। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. Crumbling word बार बार यूज किया गया है। क्रम्बलिंग का मतलब यही कमज़ोर, टूटा फूटा, या मतलब ऐसा जो कि मजबूत ना हो। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज मतलब तुम टूटे फूटे घरों को, कमज़ोर घरों को गिराते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, वहीं कमज़ोर दरवाजे को। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब एक छत के नीचे का इंक्लिन्ड जो स्लोप होता है, जिसको आप कह सकते हो कि छत को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा बीम लगाया गया होता है, या लकड़ी का या कंक्रीट का, उसको हम लोग राफ्टर कहते हैं, छत के नीचे का जो सपोर्ट होता है। तो वही लिखता है कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, मतलब ये जो सारे चीज़ जो कमज़ोर होते हैं, क्रम्बलिंग होते हैं, चाहे वो हाउसेज हो, डोर्स हो, राफ्टर्स हो, वुड हो, बॉडीज़ हो, लीव्स हो, लाइव्स हो और हार्ट्स हो, सबको तुम तोड़ देते हो, सबको ख़राब कर देते हो, गिरा देते हो। क्यों? ये किससे तुलना किया गया है? तुलना इसलिए किया गया है क्योंकि जीवन में भी, इस दुनिया में भी जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको सताया जाता है। जैसे आप सुने होंगे एक बहुत बड़ा और सुंदर सा दोहा है, सबे सहायक सबल को न निर्बल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। उसी पे ये बेस्ड भी है। तो देखिए क्या है, फिर कहता है कि तुम जितने भी कमज़ोर हैं, चाहे वो हाउसेस हों, दरवाजे हों, राफ्टर्स हो, मतलब
छत के नीचे का सपोर्ट करने वाला पिलर हो, वुड हो, बॉडीज हो, जीवन हो, चाहे हार्ट्स हो, सबको तुम तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब यहाँ देखिए, द विंड गॉड, यहाँ पवन भगवान या पवन देवता की बात की गई है। ये क्या करते हैं? विनोज का मतलब फटक करके बाहर करना। विनोइंग, यू नो, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ सेपरेशन। विनोइंग, व्हाट इज इट? विनोज का मतलब, विनो का मतलब होता है सेपरेटिंग, grains from husk। ग्रेन फ्रॉम हस्क मतलब हस्क क्या होता है? जैसे धान से भूसी निकालना, गेहूँ भूसी में से गेहूँ की भूसी में से गेहूँ निकालना, दीज ऑल आर वो विनोइंग। तो यहाँ कहता है कि द विंड गॉड मतलब पवन देवता क्या करते हैं? धान की भूसी में से या भूसी में से ग्रेन को बाहर निकाल लेते हैं और भूसी को फटकार करके अलग कर देते हैं। तो ग्रेन को बाहर क्यों निकाल लेते हैं? तो व्हाट इज द सेंस बिहाइंड इट? तो ग्रेन इज हियर स्ट्रॉन्गर, पैडी और व्हीट दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर हेवियर देन दैट दो शाफ, और they are heavier than that those husk. This is why grains come down and wind doesn't do any harm to it, but the chaff or husk it goes away or it is blown away. मतलब जो भूसी होता है इसको उड़ा करके पवन देव ले जाते हैं, जबकि उसका जो ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है। तो इससे भी यही सेंस है कि हियर ग्रेन डिपिक्ट्स strength, or grain is showing that it is stronger, and husk it is showing that it is not stronger. This is why it is blown away by this wind. Let us see now next. तो इस तरह से पवन देवता भी विनोइंग करते हैं, मतलब ग्रेन को अलग करते हैं और भूसी को उड़ाकर बाहर ले जाते हैं। तो दुनिया भी जो अमीर है, जो मजबूत है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ती है और गरीबों का बहुत कुछ बिगाड़ देती है। ही वोंट डू दैट यू टेल हिम, मतलब जो आप उसे कहते वो नहीं करती है। कौन सी? हवा नहीं करती है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अभी तक कवि ने तो रिक्वेस्ट किया था ना, द पोएट हैज़ रिक्वेस्टेड ऑलरेडी द wind to blow softly and don't break the houses, don't break the rafters, don't break the doors and window pane. Even he has also requested not to make fun of those weak people, weak section of the society. Or it was already requested, but the wind doesn't do as per his wish or what he tell him. This is why the poet now suggesting us, what does he suggest us? Let us see. So come, इसलिए आइए, let us build strong homes, और आइए हम लोग एक मजबूत घर बनाएं। आइए हम लोग मजबूत घर बनाएं। Let us join the doors firmly, दरवाजे को दृढ़ता से ज्वाइंट करें। Practice to form the body, practice to form the body, और let us practice to make ourselves physically sound. Let us practice, let us exercise to make ourselves fit and fine. Then nothing in this universe or nothing in this environment will harm us. One example more, students, corona, you see the time is going on, this is corona period, and in corona period this is why we are studying online or through YouTube, otherwise our regular or and physical classes will run. So this is the byproduct that we are doing online classes or classes on YouTube. And in this corona period, in this pandemic period, those who are physically strong, physically sound, can corona affect him? Can corona cause any type of suffering to him? Never, because he is physically sound, physically fit. So you make yourself also physically fit and sound. Nothing will harm you, nothing will make you ill. So make yourself stronger
because of this can be done by your practice, by your exercise on regular basis. The same is given here. Let us see. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मतलब बॉडी को फॉर्म बनाने का, दृढ़ बनाने का प्रैक्टिस करो. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. ऐसा करो और ये हवा तुम्हारे मित्र हो जाएगी. जब आप स्ट्रॉन्गर हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे मित्र हो जाती है. अगर आप रोबस्ट हो जाते हो, स्टीड फास्ट हो जाते हो, तो द वर्ल्ड बिकम्स योर फ्रेंड. दिस इज़ अ परमानेंट ट्रूथ. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कहता है कि हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है. ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन वही मजबूत आग की लपटों को बढ़ा देती है, उसमें गर्जना पैदा कर देती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड एंड वी प्रेज हिम एवरी डे. हवा की फ्रेंडशिप अच्छी है और हम उसकी रोज़ प्रशंसा करते हैं. व्हाट इज हैपन, जो मैंने पहले आपको दोहा बताया था, हाइम जो था, सबे सहायक सबल को, कोउन निर्बल सहाय, पौन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाए. इसका मतलब यही है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. उसका सेंस वही है कि हवा जो है कमज़ोर आग को बुझा देती है, जबकि वही मजबूत आग को उसमें गर्जन पैदा कर देती है और बढ़ा देती है. देन स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू फील आफ्टर स्टडिंग दिस पोएम? यू हैव टू पुट the same in your comment. Never hesitate to comment if you feel any sort of problems, or if you don't understand any portion of the poem or any video clip or any explanation. If you don't understand, never hesitate to comment. Surely and certainly I'll make you understand in the next clip, as per your suggestions, as per your comments. But before leaving, once again I am requesting to subscribe the channel, because without subscription, how can this study stuff would reach you without any hurdle and obstacles. Thanks a lot. See you again in the next clip. Have a good day.